Hello everyone, welcome back to our channel Brain Art Educators. I am Ruchi Kukreja, your maths educator. Last time हमने start करी थी class 10th की series of mathematics and we started with the chapter real numbers. Real numbers के बारे में हमने काफ़ी explanation का portion last video में cover up कर लिया था. हमने start किया था from all the types of numbers, natural, whole, integers, rational and then the irrational. उसके बाद हमने बात करी थी HCF and LCM की. आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सेज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. और इसके अंदर बिल्कुल पहला नंबर इज 140. सो दिस वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1. Expressing 140 as the product of primes. इसके अंदर what you have to do is simple the prime factorization. आप 140 का ऐसे prime factorization करेंगे जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं. 2 से जाएगा 70, 2, 35, 5 से जाएगा 7 and 7 से जाएगा 1. Right? So if we have to express this as a product of primes, we can write 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 square into 5 and into 7. And this is a very easy question जो आप बहुत सालों से already करते आ रहे हो. एक और इसका पार्ट कर लेते हैं. The third part is 3825. So let's start with the third part. 3825. 3825 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 3 से चेक कर लेते हैं. 3 plus 8 is 11. 11 and 2 is 13. 13 and 5 is 18. So this means ये नंबर 2 से तो नहीं जा रहा है because यहाँ पर odd नंबर है. 3 से जाएगा. So first we'll start with 3. We get 1, 2, 7, 5. Again let us check for this one. 12 and this again 12. ये भी 3 से जाएगा. 3, 4, 2, 5. This will again go by 3. 1. No, this won't go by 3. Let us do it with 5. 5 से जाएगा तो 85 आंसर आ जाएगा. Again 5 से जाएगा तो 17 आ जाएगा आंसर और 17 से जाएगा तो 1. तो इस प्रोडक्ट नंबर का प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 into 3 into 5 into 5 and into 17, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर into 17. So this is all about the first question. इसके बाकी के पार्ट्स आप अपने आप ज़रूर ट्राई करना. अगर कुछ डाउट आएगा तो ज़रूर मेंशन करना हमें कमेंट बॉक्स में. Moving ahead to the second question. Second question is saying find the LCM and HCF of the following pairs and verify that LCM into HCF is equal to the product of two numbers. So let us start with this question. Question number 2 is wanting you to find the HCF and LCM of the pairs. Let us pick up the first pair 26 and 91. अब इसका जब हम LCM and HCF निकालेंगे हम इन नंबर्स को इकट्ठा लिख लेंगे 26, 91 and we will start solving these numbers. This is going with 2 but this is not divisible by 2. तो आप 2 से नहीं स्टार्ट करना. पहले आप वो वाले प्राइम फैक्टर्स पकड़ो जो दोनों में कॉमन है. अगर हम कॉमन देखें तो इसके अंदर 13 is a factor of this and 13 is also a factor of this. So हम 13 ले लेते हैं जो कॉमन है. 13 into 2 is 26 and 13 into 7 is 91. अब क्योंकि इसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बच रहा है तो हमारा वर्क यहीं पर रुक जाएगा एंड हम क्या करेंगे HCF हम ले लेंगे सिर्फ 13 क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ 13 ही आया एज अ फैक्टर. और जब LCM की बारी आएगी तो आप LCM में 13 into 2 into 7 कर देंगे. 13 into 2 into 7. So this makes 13 into 14. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 13 into 14 would give us 140
plus 14 into 3 is, I guess, 42. So 182 would be the answer, and this is the HCF, right? Now moving ahead. अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि LCM और HCF को निकालो, उसके बाद ये वेरीफाई करो. टू वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of numbers. So now let us start with the LHS. LHS says we have to multiply LCM, that is 182 into 13. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6, 4, 5 and then 281. So your answer comes as 2366, right? और अब हम सॉल्व करते हैं RHS. RHS says the product of numbers. What were the numbers? 21 into 26 into 91. So we get 26 into 91. इसको जब हम सॉल्व करेंगे we will get 9, 6 is 54, 5, 2, 3. So again we get 2366. So then below this we will just write LCM LHS is equal to RHS and then hence verify. ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. आपने LCM और HCF निकालना है, उसके बाद आपने ये वेरिफिकेशन वाला स्टेटमेंट लिखना है. LHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो. अगर आपकी ये वाली कैलकुलेशन करेक्ट है LCM और HCF की, तो 110% आपका ये वेरीफाई जरूर होगा. इसी का एक और एग्जाम्पल फटाफट से कर लेते हैं. सेकेंड वन इज सेइंग द बी पार्ट. B part is having the numbers 510 and 92. 510 and 92. Again हमने इन दोनों का पहले HCF और LCM निकालना है. जब HCF और LCM आ जाएगा हमने अपनी गिवन स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेना है. तो वी स्टार्ट अगेन. इन दोनों का 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो हम सबसे पहले 2 ले लेंगे. वी गेट 255 एंड देन जब 2 से 92 जाएगा वी विल गेट 46. अब इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. ये 5 से जाएगा बट ये 5 से नहीं जाएगा. यहाँ पर आप क्विकली एनालाइज कर सकते हो कि 46 23 का डबल होता है और 23 एक प्राइम नंबर है. तो आप ये चेक कर सकते हो कि क्या ये 23 से जाएगा, और अगर हम इसको 23 से लेके जाते हैं तो दैट सीम्स टू बी अ लिटिल. 15 से चेकआउट कर सकते हैं. 23 इंटू 15, आप 23 इंटू 10 करो 230 एंड देन 23 इंटू 5 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 115 और नहीं 115 एंड यू गेट 345. तो ये आपका 15 से भी नहीं जा रहा है. तो आई गेस हम यहीं पर सिचुएशन को रोक देंगे और HCF would come out to be 2. Yes. इस केस में हमारा जो HCF है वो हो जाएगा 2 एंड LCM अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 255 इंटू 46. 2 इंटू 255 इंटू 46. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टेक्निकली 255 इंटू 92 ही आ रहा है. यस 255 इंटू 92. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप 255 इंटू 100 कर सकते हो 25500 और उसमें से 255 इंटू 8 को माइनस कर सकते हो. तो जब हम 8 से करेंगे 0 44 एंड अगेन 4 है 8 2 16 एंड 4 20. 2040 को माइनस करेंगे ये 60 आ जाएगा 460. 23460 वुड बी द LCM, राइट. ये सारी जो टेक्निक्स हैं जिनसे मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ, दीज आर द टेक्निक्स फॉर वैदिक मैथ्स, जिसको हम डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में सीख सकते हैं.
अब when we are ready with HCF and LCM, what we have to do is the verification. When we will start verifying, we will write here to verify HCF into LCM is equal to product of numbers. अब हमारा LHS was HCF into LCM. HCF is 2 and LCM is 2, 3, 4, 6, 0 and the answer goes out to be 4, 6, 9, 2, 0. Right? And RHS को check out कर लेते हैं. RHS says product of numbers, that is 510 into 92. Again इसको अगर हम थोड़ा सा वैदिक लगाएं, 510 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 51,000 और 510 को 8 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया तो I get 084080 and that gives me 20 here and then 9 and 6 this. Yes, so I get 46920. Hence my result is verified. LHS is equal to RHS, hence verified. And that is it. We are done with the second. Alright, तो हमने क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट्स कर लिए हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. और इसके अंदर आप देखेंगे आपको 3 इंटीजर्स दे रखे हैं. सो इस केस में ना आप आई वुड से डू नॉट प्रेफर डूइंग विद दिस सिनेरियो. आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है और 3 नंबर्स दे रहा है तो आप उन सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन को अलग अलग ही करो. आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ. क्वेश्चन नंबर 3 में लेट अस पिक अप द बी पार्ट. B part is having the numbers 17, 23 and 29. ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं. इसको फटाफट कर देते हैं. 17, 23 and 29. अब क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ना टेक्निकली यही रुक जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि ये इससे छोटे किसी भी नंबर के टेबल में आते ही नहीं है. और क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो ये ऑब्वियस है कि इनका HCF वुड बी 1 एंड इन तीनों का LCM वुड बी 17 इंटू 23 इंटू 29. राइट. अब इसका हम लंबा सा कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने पकड़ लिया. हम इसी क्वेश्चन का C पार्ट करेंगे. LCM जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर. राइट. एक बार इसका C पार्ट देखते हैं. It is saying 8, 9 and 25. Right? So let us see. C part is saying 8, 9 and 25. इसके अंदर जब हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे we will get this. जब हम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे we will get this. एंड जब हम 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे we will get this. Again this question is a situation where all the 3 numbers do not have any common factor. आप 8 को लिखेंगे 2 into 2 into 2, 9 को लिखेंगे 3 into 3 and 25 को लिखेंगे 5 into 5. इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 and 5 की पावर 3. जब हम HCF निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं. अब इन तीनों में से तो कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम इस केस में अगेन HCF को 1 लिखेंगे. 5 की पावर 2 होगी ना. हाँ यस सॉरी यहाँ पर 5 की पावर 2 आएगा. राइट. HCF हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और LCM जब हम लिखेंगे तो हम जितने भी फैक्टर्स दोनों नंबर्स में तीनों नंबर्स में आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स लेते हैं. अब यहाँ पर तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं, कुछ रिपीट हो रहा है तो हम इन तीनों को ही ले लेंगे. 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. सो दिस विल गिव अस आवर LCM. राइट. नाउ 25 इंटू 4 इज 100. 4 इंटू 2 इज 100 इंटू 2 इज 200 एंड देन इंटू 9 1800 हमारा LCM आ जाएगा इस केस में.
So this is what you have to do in question number 3. आप याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, for HCF you will take only common factors, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर्स. जो कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर है उसको लोगे HCF में. एंड जब आप LCM निकालोगे आप सारे फैक्टर्स लोगे, ऑल फैक्टर्स, चाहे वो इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है और इन दोनों में नहीं है, कुछ भी, ऑल फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर, विद द हाईएस्ट पावर, राइट. तो इस तरीके से आपका HCF और LCM आएगा. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है गिव यू. सपोज हमने कोई भी नंबर लिया, आई एम नॉट टेकिंग अ स्पेसिफिक नंबर हियर, हमने कोई भी नंबर लिया जिसके अंदर सिचुएशन ऐसा था, एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा बना, एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा बना, और एक और नंबर लिया जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से बना. अब जब हम इन तीनों नंबर्स का HCF और LCM लेंगे, HCF एंड LCM, राइट. अब आप इस रूल को देखो ध्यान से. HCF होगा ओनली कॉमन फैक्टर्स, तो ओनली कॉमन फैक्टर्स जो ऐसे फैक्टर्स तीनों में आ रहे हैं, राइट. 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया. आई कैन राइट 2 हियर, राइट. 3 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, सो इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल 3 ऑफ देम, वी विल इग्नोर इट. 5 इसमें है और इसमें है, तीसरे में नहीं है, 5 अगेन इग्नोर हो जाएगा. 7 इसमें और इसमें है, तीसरे में नहीं है, 7 अगेन इग्नोर हो जाएगा. और अब इसमें पावर कौन सी लेनी है, जो स्मॉलेस्ट पावर थी. 2 की स्मॉलेस्ट पावर, इन तीनों में से 2 की स्मॉलेस्ट पावर वाज 2, तो आपका HCF बन जाएगा 2 raised to the power 2. सपोज अगर ऐसा होता कि इस नंबर में एक 5 स्क्वायर और होता, तो 5 भी तीनों में कॉमन हो गया. वी वुड कंसिडर 5 इन दिस, हम 5 को इसमें ले लेते, लेकिन अगेन स्मॉलेस्ट पावर के साथ. तो जो स्मॉलेस्ट पावर है 5 की वो है 2, तो इस नंबर का HCF बन जाता 4 into 25, दैट इज 100, राइट. नाउ कमिंग टू द LCM. LCM ये कहता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लेने हैं. इसको कैसे करना है, आप पहले नंबर में आपका 2, 3 एंड 5 है, आप 2, 3 एंड 5 यहाँ लिख दो. दूसरे नंबर में 2, 5 एंड 7 है, जिसमें से हम 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 ऑलरेडी ले चुके हैं, 7 हमने नहीं लिया तो हम 7 ले लेते हैं. तीसरे नंबर में 2, 3, 7, 5 और ये सब हम यहाँ पर ले चुके हैं. वी आर डन विद ऑल द फैक्टर्स. अब वो ये कह रहा है ऑल द फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर इन फैक्टर्स की तीनों में से कहाँ है. 2 की हाईएस्ट पावर इज 4, सो हम 2 की पावर 4 लेंगे. 3 की हाईएस्ट पावर इज 3, तो हम 3 की पावर 3 लेंगे. 5 की हाईएस्ट पावर इज 3, तो हम 5 की पावर भी 3 लेंगे. एंड 7 की हाईएस्ट पावर इज 2, तो हम 7 की पावर 2 लेंगे. इससे हमें मिलेगा हमारा LCM, जो हो जाएगा 16 into 27 into 125 into 49. और अब एक ये लंबी सी कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे. दिस इज द प्रोसीजर कैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालना है. आप इसको जरूर कहीं पर नोट डाउन कर लेना. दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर मैथमेटिक्स टिल द हायर स्टैंडर्ड्स, राइट. Let's move on to the next question. Fourth question is saying, question number 4 is saying, given the HCF is given 306 and 657 is equal to 9. This is question 4. You have to find LCM 306 into 657. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको रीड आउट कैसे करना है. जब भी ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, यू हैव टू रीड आउट HCF ऑफ
306 and 657 is 9, right? Whenever you are reading something in mathematics, आपका वो रीडिंग पोर्शन अगर करेक्ट है तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको रीड जब आप करोगे HCF इस ब्रैकेट का मतलब है ऑफ, दीज टू नंबर्स इक्वल टू का मतलब है इज, और 9 इज द आंसर। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो जो हमने एक फॉर्मूला किया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट? LCM हमने फाइंड करना है, HCF हमें 9 गिवन है, 9 इंटू LCM इज, और हमारे दो नंबर्स हैं 306 एंड 657। सो वी विल जस्ट डू दिस। यहाँ पर आप प्लीज इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो फॉर नो रीजन यू आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू अ सिंपल क्वेश्चन। आप LCM यहीं पर रहने दो LHS में, 306 इंटू 657 अपॉन 9, राइट? अब आप देखो ये 306 9 से जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, and here we get 34 as the answer। अब आपका LCM हो जाएगा 34 इंटू 657। इसका आप कैलकुलेशन करोगे एंड द आंसर वुड कम एज 8 2 6 1 2 2 3 3 8. This would be the LCM of the two numbers, and that is it. The question was a very simple one. Let's move to the next question. Fifth question is saying 6 to the power n. Can such a number end with the digit 0? Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इस क्वेश्चन को समझने के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्ड्स या थ्योरेटिकल प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। 6 टू द पावर n, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं, आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 3 टू द पावर n, क्योंकि 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3। इसका मतलब कोई भी अगर नंबर 6 की पावर n लेगा, फॉर इंस्टेंस हम थोड़े से नंबर्स यहाँ पे लेके देखते हैं, 6 टू दी पावर 2, राइट? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, राइट? 6 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, और ऐसे ही हम 6 की पावर अगर 27 भी ले लेंगे तो 2 की पावर 27 इंटू 3 की पावर 27। अब हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें लॉजिकली एक चीज पता है, कोई भी नंबर के एंड में 0 तब आता है जब वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, राइट? अगर मुझे किसी नंबर के एंड में 0 चाहिए, 56 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी उसके एंड में 0 आएगा, राइट? और किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका मतलब उस नंबर में कहीं ना कहीं 2 और 5 का पेयर जरूर होना चाहिए। इसका मतलब जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, राइट? अगर हम इस लॉजिक से चलें तो 6 की पावर n के अंदर प्राइम फैक्टर्स में इन एनी केस जो भी 6 के मल्टीपल्स होंगे या जो भी 6 से जितनी बार भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर बार बार वो चीज सिर्फ 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो रही है n नंबर ऑफ टाइम्स, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। इस पूरे प्रोसीजर में 6 की पावर n में कहीं पर भी 2 into 5 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली अब ये तो हमें समझ में आ गया कि दिस काइंड ऑफ अ नंबर कैन नॉट एंड इन 0, राइट? लेकिन अब इसको लिखना कैसे है वो मैटर करता है। आप क्या करेंगे, ऐसे 6 की पावर n को शो कर दो 2 into 3 whole to the power n, right? This implies any such number
will have only 2 and 3 as its prime factors. As its prime factors, right? इसके बाद आप लिखो for a number to end in 0, it should have a pair of 2 and 5 in its prime factors. I'll change the pen. 2 and 5 in its prime factors. Obviously जब तक 2 और 5 आपस में मिलेंगे नहीं तब तक 10 नहीं आएगा, और जब तक 10 नहीं आएगा नंबर के एंड में 0 नहीं आएगा, राइट? Therefore any number in the form of 6 to the power n cannot end in 0. End in 0. That is it. अब बोर्ड एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के किसी नंबर का एग्जाम्पल आ सकता है। हो सकता है वो आपसे 6 की पावर n की जगह पे लेट अस से 15 की पावर n पूछ लेता है, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 3 and 5। अगेन उसमें 2 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 2 कहीं नहीं आएगा, 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो नंबर 0 में एंड नहीं हो सकता। I hope this is clear and it makes good sense to you all. Let us move to the next question. Moving to the question 6. Question 6 says explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. अब अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट करवाया था। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे सिर्फ वो जिनके फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर में अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो डेफिनेटली उसमें 1 और नंबर इटसेल्फ के बीच में भी कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली लाई करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक सेट पैटर्न है। आप उसी पैटर्न से जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको अटेम्प्ट कर दो, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट जाएगा। आप देखो कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन डिसाइड करता है कि उसमें कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, इसका मतलब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अगर इन दोनों टर्म्स में हम देखें कि कॉमन नंबर कौन सा है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन नंबर इज 13, हम इस 13 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 13, अंदर बचेगा 7 into 11 इस टर्म से, और इस टर्म में कुछ भी नहीं है तो हम ऐसा रिज्यूम करके चलते हैं कि 13 इज इक्वल टू 13 into 1, तो इस टर्म से बचेगा into 1, सॉरी, और प्लस का साइन डालेंगे, बीच में 1 लिख देंगे, राइट? नाउ व्हेन वी मूव अहेड वी गेट 13 into 7 into 11 is 77 plus 1. This makes 13 into 78. अब अगर ये कोई भी नंबर है, अगर हम इसको 13 into 78 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए। एक तो 1 था, एक नंबर इटसेल्फ था, और 2 तो हमने यहीं पर निकाल दिए, राइट? तो दिस मीन्स आप इसके नीचे लिखोगे दिस इम्प्लाइज द नंबर हैज more than 2 factors, more than 2 factors, hence it is composite, hence it is composite, क्योंकि composite नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा जो 2 टर्म्स होंगे, उन दोनों टर्म्स में कोई ना कोई नंबर कॉमन जरूर होगा, और उसकी वर्किंग आपने ऐसे ही शो करनी है। आप कॉमन वाला टर्म बाहर लो, रेस्ट ऑफ देम अंदर लो, आपको फाइनली वो टर्म, वो नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिख जाएगा। और जब वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिख जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये बन जाता है कि उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, एंड हेंस द नंबर इज कॉम्पोजिट। इट्स सो सिंपल।
Now moving to the last question of our exercise, question number 7. Question number 7 is saying, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again to the starting point? अब एक सर्कुलर पाथ है जहां से दो लोग चले, यहीं से दो लोगों ने चलना शुरू किया. एक तो थी सोनिया और दूसरा था रवि, राइट. ये सोनिया ने जब चली, इसने इस राउंड को कंप्लीट करने में लगाए 18 मिनट्स, और जब रवि चला तो यहीं से चल के इस राउंड को कंप्लीट करने में इसने लगाए 12 मिनट्स. अब आप ये सोचो कि अगर ये लोग भाग रहे हैं, आगे 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 भाग रहे हैं, तो ये जो नंबर्स हैं 18 एंड 12, कुछ भी करोगे, अगर 18 और 12 आगे 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 जा रहे हैं, तो क्या हम इनके मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं या हम इनके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? हम इनके मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक राउंड काटा तो 18 मिनट्स, दूसरा राउंड काटा तो 36 मिनट्स, तीसरा राउंड काटा तो 54 मिनट्स. तो वही बात हो गई ना कि हम आगे 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 चल रहे हैं, राइट. तो अगर हम देखें सोनिया के अगर हम पैटर्न देखें तो उसका पैटर्न क्या बनेगा? 18 मिनट्स, 36 मिनट्स, 54 मिनट्स एंड सो ऑन, राइट. तो ये चल रहे हैं 18 के मल्टीपल्स. और अगर हम रवि का पैटर्न देखें तो वो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. इसका मतलब रवि इज कंप्लीटिंग द राउंड इन 12 मिनट्स, सेकेंड राउंड इन 24 मिनट्स, थर्ड राउंड इन 36 मिनट्स एंड सो ऑन. ये दोनों इकट्ठे कब मिलेंगे? ये दोनों इकट्ठे उस मल्टीपल में मिलेंगे जो इन दोनों का कॉमन होगा और लीस्ट होगा, राइट. दैट मीन्स हमने इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, जो हमें यहाँ से, क्योंकि नंबर्स छोटे हैं एंड थोड़ा ऑब्वियस है, यहाँ से हमें मिल जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एज 36. So this means if LCM is 36, our answer statement comes as Sonia and Ravi will meet after 36 minutes. अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे. This was the 7th and the last question of the exercise. But यहाँ पर एक चीज I would like to tell you all कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं रिलेटेड टू LCM और HCF, आप ध्यान इस चीज पे दो कि जब हम इस लॉजिक को प्रैक्टिकल लाइफ से या मैथमेटिक्स से कोरिलेट करेंगे तो जो भी हमें वैल्यूज गिवन है, राइट, उन वैल्यूज को हम टेक्निकली बढ़ा के आगे लेके जा रहे हैं उनके मल्टीपल्स की तरफ, या जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है हम उन वैल्यूज को काट के छोटा कर रहे हैं उनके फैक्टर्स की तरह. वो आपको हिंट दे देगा कि वेदर द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क ऑन द LCM or the HCF. This will definitely help you a lot. With this, we have covered the exercise 1.1. In the next video, we'll move ahead with the chapter. Stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe the channel. Take care.